आदाब से दोस्तों, ओजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलत्री और आज मैं फिर से मौजूद हूँ तिनसुकिया शहर के पर्वतीय रास्ते पर। जी हाँ, कल तक यहाँ पर इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे, ना गड्ढों का पता चल रहा था ना रास्ता का पता चल रहा था। इसी गड्ढे में बरसात का पानी कीचड़ इकट्ठा होने से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही थी। मगर कल तिनसुकिया के जिला उपायुक्त ने जब इस रास्ते का इंस्पेक्शन किया है, उसके ठीक अगले दिन के आज सुबह का देखा है जहाँ जेसीबी मशीन को लगाए गए हैं और यहाँ पे रबिश डाला गया है जगह जगह पर और रास्ते को संरक्षण किया जा रहा है। ये तिनसुकिया के जिला उपायुक्त के दौरे का ही असर है कि महज कुछ घंटों में पर्वतीय रोड पर सुधार नजर आने लग रहा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, मेरा ससुराल है। मैं अपने पीहर आई थी यहाँ पे, अभी 10 दिन हो रहे हैं। जब से बारिश हो रही है ना, तब से पूरा पानी मतलब पूरा ये हो गया है, रास्ता पूरा खराब हो गया है और पूरा रास्ता मतलब कहाँ गड्ढा है कहाँ रास्ता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे कितने आदमी गिरे, कितने आदमी को चोट लगी है, इसलिए। और कल डीसी आए थे, हमें मीडिया के थ्रू पता चला है कि यहाँ पे डीसी आए थे, तो वो आज लेबर लोग को लगा है। देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कैसे वो अभी गिरा हुआ है, तो जगह को बराबर करने के लिए और मैं ये कर रही हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से मतलब ये रास्ता ठीक हो, जो सभी लोगों को मतलब कि जाने आने जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, सभी अच्छा से जाए आए। बस मैं आप डीसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से रास्ता ठीक कर दे कि सभी को तकलीफ ना हो, सभी अच्छे से मतलब अपने घर जाए कोई। और रास्ता बहुत खराब था, कितना बार मतलब आदमी गिरा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक कर दे। और अब जब डीसी यहाँ पर खुद आकर यहाँ का मुहैया करवाने के बाद जब ये काम शुरू है तो आपको खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। आपको आपकी आशा बन रही है कि अब ये रास्ता ठीक होगा? हाँ, आशा हो रही है कि ठीक हो रहा है। होने के बावजूद हमें देखने को मिल रहा है कि पर्वतीय रोड पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, तिनसुकिया नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर भ्रमण करके यहाँ हो रहे काम का जायजा ले। Yes, Parvati Road is a major concern that is reflected here. It has been highlighted that we have to unblock all the drain water, particularly from these new drains, and we have to flush it out in the natural drain that is flowing right behind us. So our mission has started from yesterday morning 7 o'clock. We have been We have detailed around 7 people here, but because today is Labor Day and we have very shortage of labor right now, and also election is going on. So as of now, we have detailed only 10 people, and we will be finishing off the unplugging by today hopefully, and also some because we monsoon now and shall not go with a structural construction now. We are trying to come up with a temporary solution, but definitely after a few months, maybe by the end of August, we will try to bring an entire structural change in this particular road. Particularly, we are unplugging the drains that you can already see here, and by unplugging the drain, we can also find a solution because the drain, when it's plugged, it gets in the road. The water gets in the road, and this unplugging is basically flogging is basically because of the garbage that's been dumped in the drain directly, and also the construction and demolition materials have been directly stored in the drain and all, and that's why this particular issue has been. We have seen one more major issue. There have been some big ditches, drain type structure ditches were found in the mid of the road at several distance on the entire stretch of the road. Locals have alleged that this has been caused because of laying of water pipelines. So, what is the reason these contractors do not feel it necessary to level the road once the work is completed immediately, so that, when rainy season the water does not get accumulated, the mud, slushy mud doesn't get accumulated, and this kind of situation doesn't get worsened? This will be done by the contractor itself, and it will be done immediately. एक तरफ जहां पानी के निकासी के लिए
नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे में बंद इन दृश्यों में कि नालों से कैसे मलबे का अंबार निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अस्थायी समाधान हेतु रास्तों की पर मरम्मत का काम जोर शोर से शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को की तकलीफ कम हो सके। मोजो न्यूज सिलसिलेवार तरीके से पिछले 2 सप्ताह से ये पर्वतीय रास्ते की अवस्था को उजागर कर रहा था, यहाँ के लोगों के दर्द को झलका रहा था। हमें खुशी है कि मोजो न्यूज के इस न्यूज के इम्पैक्ट यहाँ आज देखने मिल रहा है, जहाँ डीसी तिनसुकिया के जिला उपायुक्त स्वप्निल पॉल के निरीक्षण के बाद उनके दिए गए आदेश अनुसार यहाँ पर रास्ते का रेस्टोरेशन का काम एवं नाले के साफ सफाई का काम शुरू हो गया। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पर्वतिया के लोग के निवासी एवं यहाँ से आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें काफी कम होंगी। देखते रहिए मोजो न्यूज।